record. And then if I stop sharing, then probably I can see myself. Stop share. Okay, then I can see myself. Okay, and right, but you can't see the notes now. You guys can't see now. Sir, notes are visible. Agriculture. Visible? Oh, that's great. Yes, sir. Oh, beautiful, yeah. Okay, एक तरफ से शुरू करते हैं. तो देखो we are. No sir, not right now sir. Sir अभी नहीं Not now, sir. Sir, अभी नहीं है, but yes, a minute before they were visible. मुझे लग रहा है वो थोड़ा हटने में टाइम लगा होगा. अदरवाइज मुझे ऐसा तो कैसे हो सकता है कि नोट्स मैं शेयर करूं. मैं हाँ, अभी दिख रहे हैं नोट्स? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes, sir. चलो चलो अब शुरू कर देते एक तरफ से. प्रथम इज हियर. प्रथम, पार्टिसिपेंट्स दिखा रहा है मेरे को. अचिंत्य. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन साइड. अचिंत्य आप स्टार्ट करें, मैं बताऊंगा कहां से स्टार्ट करना है. वी हैव डन. Yes sir. मिलेट्स मेज तक कर लिया था. पल्सेस, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अपना इंडिया पल्सेस में और एडिबल ऑयल दोनों में. सो प्रोटीन हम लोग खाते भी बहुत हैं, प्रोड्यूस भी बहुत करते हैं. यहीं से शुरू करना है मेरे ख्याल से. ये एक्चुअली हो गया था पॉइंट, बट जस्ट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ओवरलैप. अचिंत्य, स्टार्ट फ्रॉम पल्सेस प्लीज. 24. Pulses. India is the largest producer and consumer of pulses in the world. Pulses are important source of protein and minerals and also are known as poor man's meat. So, screen के Black सामने screen. Yeah, okay, yeah, okay. Now, got it. Whatever I'm showing on the screen is seen by you, na? I was trying to see who all are Yes. there in class. Okay, चल ठीक, हटा दिया. Okay. Pulses need less soil moisture and can survive in dry conditions. All the pulses except arhar has ability to fix nitrogen and restore the soil fertility. They are grown in crop rotation so that the soil gets its nutrients back. Major pulses that are grown in India are tur, arhar, urad, moong, masoor, peas, and gram. अचिंत्य, आवाज आनी बंद हो गई. सर खत्म ओके, हो ठीक गया. है. I'll explain. एक छोटा सा पॉइंट समझाना है आप लोग. ओके, सो हाउ डज द नाइट्रोजन फिक्सिंग टेक्स प्लेस. सबको ये बात पता होगी शायद. मैं लास्ट क्लास में आई थिंक कवर किया है कि बेसिकली व्हाट हैपेंस इज how is nitrogen fixed. I'll just fixing. It's called nitrogen fixing. So let's say you have a plant and all these leguminous plant, legumes बोलते हैं इनको. legumes के अंदर क्या क्या आता है? सारी pulses दालें आती है और साथ में beans, kidney bean and all those beans. So इनका जो plant होता है, plant में यहाँ पे nodes होते हैं और इन nodes के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, इसको बोलते हैं राइजोबियम. राइजोबियम बैक्टीरियम बोलते हैं. बैक्टीरियम सिंगुलर, बैक्टीरिया प्लूरल. तो राइजोबियम क्या करता है? एयर से जो नाइट्रोजन है, इट टेक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड कन्वर्ट्स इनटू टू टाइप्स. नाइट्रेट, हम लोग सबने याद सुना है, फॉर्मूला याद है सब, मैं कराया था. NO3 and nitrite, NITRITE, nitrites, NO2s. Different nitrate and nitrate. So these will combine. These are water soluble, both of them. So these will mix with the water and they'll be sucked by the xylem, by the root, and then taken by the xylem here. So this is what is called nitrogen fixation. Now what happens is nitrogen cycle के अंदर क्या होगा? पौधे गिरेंगे, हम लोग खाएंगे, हम लोगों की बॉडी डिकम्पोज होगी बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो वापस एयर में रिलीज कर देते हैं नाइट्रोजन को. सो इट बिकम्स ए नाइट्रोजन साइकिल.
all pulses do it except error. इसका मैं I'll find out the reason why error doesn't do it. I'll just it may be interesting to find out and then share with you. Okay. अंतरिक्ष एक बार चेक पॉइंट 2 के क्वेश्चन पढ़ देना. अंतरिक्ष The married Ravi. हाँ इसको क्या हो गया, सो रहा होगा. अंतरिक्ष हेलो, ये अभी मेरे साथ आया ना सोता हुआ गाड़ी में. ओके कार्तिक आप पढ़ो. हाँ Yes. या Ra- कार्तिक. Rabi crops are majorly grown in which month? Which month? Sir, So Rabi is not some grown in dialogue rains. for- So October to December is the sowing, and then March to May, June is the harvesting season. Okay. Give one example. Give one example of leguminous crops. क्या होगा बताओ भाई. Yeah, it can be anything, यार. ग्राम, अरहर दाल, उड़द दाल, तूर दाल. Sir, ragi. So all these are leguminous crops. Kidney beans, rajma, chole, grams, peas बोलते हैं इनको, peas. These are also. Okay. Next. The crop is one of the major food crops in India and mostly rain-fed. Name the crop. Okay guys, आंसर चैट बॉक्स के अंदर आंसर. इसके अंदर भी चैट बॉक्स होता है ना. हाँ ये रहा चैट बॉक्स. I have been told by my many students that's why I am using it कि सर ये बहुत अच्छा है, ये उससे मीट से अच्छा है सर. All these things. So let us try this out यार. Yeah. Okay. Okay. Yes. राजवर्धन अंतरिक्ष. वो बोल रहा है कि मेजर फूड क्रॉप है. मेज मेजर फूड क्रॉप नहीं है अंतरिक्ष. मेजर इंडिया में मेजर फूड क्रॉप कौन कौन सी है? व्हीट एंड राइस. और दोनों में से कौन सा पानी से चलता है, बारिश के पानी से चलता जा रहा है? हाँ जी आंसर. सर राइस. कोई बात नहीं प्रथम, we will try this, no problem. If there is a problem we can always go back to, but ठीक है कुछ तो प्रोग्रेस हो गई. Okay guys, clear? Rice. Okay, next question please. बाजरा मैंने बताया कहाँ होता है, राजस्थान में. हाँ Bajra grows well on sandy and dash soil. and dry soil. तो मैंने तुमको क्या बताया था उस दिन? देखो Loamy soil. हाँ लोमी में नहीं होता. Sir, लोमी तो पता है कौन सी होती loamy है? soil. लोमी सोयल होती है जो उसमें कीचड़ बन जाता है जल्दी से. उसके अंदर तो कॉटन होता है तुम्हारा और बाकी क्रॉप्स होती है जो केरला Okay, वगैरह साइड. ठीक है. हमारा बाजरा तो मैंने तुम लोग याद करने के लिए अभी अच्छा तरीका बताया था कि बैंगलोर के अंदर रा आता है तो रा से रागी. और बैंगलोर कहाँ, कर्नाटका के अंदर. राजस्थान के लोग बाजरा बहुत पसंद करते हैं, बाजरा खाया जाता है राजस्थान में. और एक और हमने बात की थी ज्वार, वो महाराष्ट्र में. 3 क्रॉप का हमने डिस्कशन किया था. Which crop is known as poor man's wheat? अभी गाइस चैट बॉक्स में लिख दो, अभी डिस्कस किया हमने. हाँ pulses. या चिंता गुड. pulses are known as poor man's meat. क्योंकि poor man जो है प्रोटीन खाने के लिए मीट और चिकन मटन बहुत महंगा आता है उसके लिए, वो नहीं खा सकता, तो वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरा करता है. ओके राइट. या कार्तिके कंटिन्यू करें. जस्ट रीड सम मोर. फूड क्रॉप्स Yes, sir. अदर देन ग्रेन्स. Food crops other than grains. Sugarcane. This is a tropical as well as a subtropical crop that requires almost a year to grow. It grows well in hot and humid climate. It requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and annual rainfall between 75 centimeter to 100 centimeter. Irrigation is required in the regions of low rainfall. Sir, should I continue? हाँ एक मिनट में आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुना गाइस. शुगर केन के लिए ना बहुत पानी लगता है, इसलिए
यूपी में होता है, वेस्टर्न यूपी में होता है, वेस्टर्न यूपी जहाँ पे आप लोग रह रहे, वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा। अब इसी की वजह से ट्यूबवेल लगा लगा के लोगों ने पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ग्राउंड टेबल बहुत नीचे चली गई है, जो वाटर टेबल है अंडरग्राउंड वाटर की, बहुत नीचे चली गई। उसका एक रीजन शुगर केन की क्रॉप है। शुगर केन की क्रॉप के पैसे तो अच्छे मिलते हैं, इट्स अ कैश क्रॉप, लेकिन वाटर बहुत लगता है इसमें। ओके, कंटिन्यू करें, लास्ट पॉइंट आप पढ़ें, उसके बाद आस्क समबडी एल्स। Yes, sir. Yeah. It can be grown on a variety of soils as long as they are fertile and well drained. वेल ड्रेन्ड, ये वर्ड का हाँ। मतलब समझो, वेल ड्रेन्ड क्या होता है? वेल ड्रेन्ड का मतलब होता है वेल वाटर्ड। वेल ड्रेन्ड मतलब वेल वाटर्ड, पानी होना चाहिए उधर, वाटर्ड। ओके, Manual labor कंटिन्यू। from sowing to harvesting is required for sugarcane. Sugarcane is the raw material used to manufacture ऑफ शुगर, used for manufacture of sugar, gur, गुड़, खांड सारी एंड khan, मोलासेस। khandsari and molasses. ओके, सो बेसिकली होता क्या है, खांड सारी इज बेसिकली जो इसकी दूसरी फॉर्म्स होती हैं, जिससे शक्कर है, अदर अदर थिंग, ऑल देयर आर 4-5 प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ओके, मोलासेस क्या होते हैं, जो जब उसके अंदर से पानी निकाल देते हैं, जिसका जूस निकाल दिया, एक मिनट, ये देखो, इट इज अ थिक डार्क सिरप रिसीव्ड आफ्टर रिफाइनिंग शुगर केन एंड यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड। डार्क सिरप जैसे बेसिकली ये समझ लो, गुड़ को अगर आपने ड्राई कर दिया तो गुड़ बन जाएगा, और उसके जूस को आपने, जैसे शुगर केन का जूस सभी लोग पीते हैं खड़े होकर, वो नींबू डाल के पीता था बंदा, लेकिन फैक्ट्री में क्या होता है, शुगर केन के जूस में से काफी सारा पानी एवापोरेट कर देते हैं अपने, तो अपने पास एक सिरप बनता है मीठे रंग का, मीठा मीठा सिरप होता है, थोड़ा ब्राउनिश कलर का, जो कि मोलासेस बोलते हैं। इसी चीज को आप बिल्कुल ड्राई कर दो, पूरा पानी उसका उड़ा दो, देन यू विल हैव गुड़ और जैगरी। हाँ, शुगर बनाने के लिए जैगरी नहीं बनाते, उससे पहले ही उसका जो जूस है उसको केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, सल्फर वर्ल्फर डालते हैं उसके अंदर, सो दैट बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड द शुगर दैट वी ईट बिकम्स व्हाइट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सल्फर इन दैट मोस्टली। हालांकि कुछ ऑर्गेनिक शुगर आ रही है, बोले हम इसके अंदर ऐड नहीं करते सल्फर, बट दे मे हैव सम अदर टेक्निक्स। ओके, राइट, प्रथम, it's your chance, you read, and then Karthik Siroy, I'll come to you. प्रथम, ऑयल सीड्स, गाइस ऑयल सीड्स का कल ही एक न्यूज आया है, ऑयल सीड बहुत महंगे होते जा रहे हैं दिन पे दिन। कल गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स कम किया है। ऑयल सीड प्रोडक्शन में भी हम मेरे ख्याल से नंबर 1 पे हैं, पल्सेस में हम नंबर 1 पे हैं, राइस में वर्ल्ड में हम सेकंड नंबर पे हैं, चाइना नंबर 1 पे है, व्हीट में आई थिंक वी आर नॉट नंबर 1। ओके, pulses we are number 1, edible oil also I think we are number 1, we'll just see. सर वीट में तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 पे। हाँ, हो सकता है, that's why I said maybe, but राइस में हाँ we are number 2, wheat का I'll check क्या what position we have. Yeah, go ahead प्रथम। प्रथम, okay, Karthik Hello, sir. Can you hear me? yeah, Pratham, okay, Pratham, go ahead now. Yes, sir. Many varieties of oil seeds are grown on about 12% cropped area of the country. The major oil seeds produced are groundnut, mustard, coconut. इंडिया नंबर 2 पे दिखा रहा है अचिंत्य, चाइना नंबर 1 पे है व्हीट प्रोडक्शन में, और इंडिया नंबर 2 पे, रशिया नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट नंबर 4। ओके, कंटिन्यू प्लीज। सर यूएसए Sir. टॉप 10 में भी नहीं है? नंबर 4 पे है, 4 पे, यस। अच्छा, Sesamum, til, कंटिन्यू प्लीज। soybean, castor seeds, cotton. Yes, sir. Cotton seeds, linseed, and sunflower. The oil extracted from oil seeds is used as a cooking medium and as raw material in the production of soap, cosmetics, and ointments. Groundnut is the major oil seed produced and is a kharif crop. Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by Rajasthan and Tamil Nadu. In 2015 to 16, linseed and mustard are rabi crops, while sesamum is a kharif crop.
in North India and Arabi crop in South India. Castor, both Arabi and Kharif crop. क्रॉप ओके सो बेसिकली व्हाट आई ट्राई टू ट्रेड कि कुछ सीड्स है जिनका ये अपन ऑयल निकालते हैं, कहीं पे रबी है कहीं पे खरीफ है, और विच डिसाइड्स रबी कौन सी खरीफ कौन सी है। रबी का जो सीजन हमें पता ही है, अक्टूबर से दिसंबर तक सोइंग होगी और मार्च से लेके मई जून तक उसकी कटिंग होगी, टाइमिंग पे डिपेंड करता है। प्रथम रीड टी, सो टी इज अ प्लांटेशन। Yes, sir. Can you hear me? या गो अहेड। This beverage crop was introduced in India by the British. This bush plant requires a tropical and subtropical climate, warm and moist, frost कॉस्ट free फ्री। throughout the year, along with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. ऑर्गेनिक मैटर, सो एवरीबॉडी नोज व्हाट इज ह्यूमस। पत्तियां, पौधे, वो छोटे छोटे उनके टूटे हुए ट्विग्स वगैरह, इज ऑल ह्यूमस। ऑलराइट, कार्तिक सिरोही, कैन यू रीड? कार्तिक, पॉइंट नंबर 31 ऑनवर्ड्स, जल्दी करें। कार्तिक 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 जल्दी। कार्तिक को कुछ प्रॉब्लम है। कार्तिक, कैन यू हियर मी? प्रथम, टेल मी, ये इफ आई यहाँ पे sir. मैसेज को ऑप्शन दे रहा है आस्क टू अनम्यूट। क्या होता है जब मैं आस्क टू अनम्यूट करता हूँ? व्हाट हैपेंस एट योर एंड? Sir, अभी तो कुछ आया नहीं. Sir, there was a dialog box in which it would say mute or मतलब it would say Unmute. first option would be unmute or would be stay muted. और दूसरा say nothing. Stay Yes, muted. sir, stay muted and unmute. ओके ओके, ठीक है, वही मैं देखना चाह रहा था जैसे। राइट, कहाँ गया अपना कार्तिक सिरोही? दादा कुछ बोलो। ओके, आई थिंक कार्तिक इज नॉट एबल टू स्पीक। राइट, राजवर्धन, टेक ऑन प्लीज। Sir, am I audible? या गो अहेड। So point number is not या visible. पॉइंट नंबर 31, frequent showers evenly distributed. We are Frequent talking showers about टी evenly नाउ, टी की बात हो रही, टी की। हाँ, frequently showers evenly distributed over the years are necessary condition for the growth of tender leaves. Tea is a labor-intensive industry which requires abundant, cheap, and skilled labor. The plucked leaves are produced within the tea gardens to maintain their freshness. Coffee. ओके, In थोड़ा सा एक 2014, मिनट, थोड़ा सा बताओ टी गार्डन। टी गार्डन बेसिकली का मैंने उस दिन भी बताया था आपको, टी गार्डन ज्यादातर है दार्जिलिंग और असम में, और क्योंकि वहां पर बारिश बहुत होती है। दार्जिलिंग असम का एरिया ऐसा है जहां बहुत बारिश होती है। दार्जिलिंग, असम, सिलीगुड़ी, ये सब इलाके हैं जहाँ पे प्लांटेशन है। और प्लांटेशन के अंदर दिक्कत सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लेबर है उसको काम बहुत करना पड़ता है। बेसिकली काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि वो बास्केट बांध लेते हैं अपने, आगे जाती रहेगी तो जो तोड़ेगी उसको पता होना चाहिए, शी नो कि कौन सा वाला तोड़ के पीछे बास्केट में डालना, और उसके बाद इनको वहीं ड्राई करके पैक करके सप्लाई किया जाता है फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए। दे हैव टू पैक्ड क्विकली, सो अदरवाइज उनका जो फ्लेवर है अरोमा उड़ जाता है। कम टू कॉफी, या गो अहेड। coffee. In 2014, India produced 3.5% of the world's coffee production. India coffee is known in the world for its good quality. The अरेबिका वैरायटी, Arabica variety, initial bought from Yemen, is produced in India. It has great demand all over the world. Its cultivation was introduced in India on the Baba बुदन हिल्स। बाबा बुदन हिल्स कहाँ पे है? साउथ इंडिया में है, बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ओके गाइस, व्हाट आर हॉर्टिकल्चर? मेरे को चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? Sir, horticulture is the agriculture of fruits and vegetables या and medicinal plants. गुड 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 गुड। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड बेसिकली प्रोडक्शन दैट, अब इसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी आते हैं। ओके,
Share screen. Yes. Okay. Yeah. Who was reading? Rajvardhan. Yes, sir. हाँ राजवर्धन कंटिन्यू करें आप. हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल एंड फ्रूट. Sir, am I audible? Yeah. Yes, sir. Audible. Horticulture. These includes the cultivation of both fruits and vegetables. Important vegetable produce of India are pea, cauliflowers, onion, cabbage, tomato, brinjal, and potato. Since vegetable usually requires less time for growth, they can be grown in the Zaid season for alternation with cereals grown in the Rabi or Kharif seasons. Okay. Most of the fruits and plantation crops in India produce both tropical as well as temperate fruits. ओके. फ्रूट ग्रोइंग एरियाज इन इंडिया. ये पढ़ दो एक बार गाइस. एक थोड़ा सा सबको पता है ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या होता है. ट्रॉपिकल होता है जो इक्वेटर के पास का एरिया है. द एरिया नियर इक्वेटर. एंड टेम्परेट इज जो कि अपने दोनों के दोनों ये ट्रॉपिक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न का जो एरिया है. बट नॉट स्ट्रिक्टली. क्यों? प्रॉब्लम क्या है? हमारा कंट्री तो सब ट्रॉपिक है. ट्रॉपिक कैंसर बीच में से निकलता है हमारे. तो थोड़ा मौसम नीचे गर्मी ज्यादा है, ऊपर ठंड ज्यादा है. तो एग्जैक्टली नहीं होता उस ट्रॉपिक और इक्वेटर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. उसका नाम पड़ा हुआ है. ट्रॉपिक वेदर होता है, हॉट एंड ह्यूमिड को ट्रॉपिक बोलते हैं. और टेम्परेट होता है माइल्ड, थोड़ा सा कम गर्म और कम मॉइस्चर वाला. मतलब ना ज्यादा बहुत ज्यादा ठंडा, ना बहुत ज्यादा गर्म. ये लिस्ट पढ़ दें एक बार आप राजवर्धन. मैंगो. So screen is not visible. स्क्रीन तो है, दिख रही है यार. Yes, sir, visible. हाँ. Fruits. Mangoes. Area Uttar Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, and West Bengal. Orange. Nagpur and Cherrapunji. Banana. Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Kerala, and Mizoram. Pineapple. Meghalaya. Grape. Maharashtra, Telangana, and Andhra Pradesh. Lychee and guava. Uttar Pradesh and Bihar. Apple, pear, apricot, and walnut. Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. ओके. थोड़ा सा इसका ट्रिक निकालना, याद करने की नहीं हो तो मेरे से बात करना. ये देखो, ये बहुत बड़ी ये लिस्ट है, इसके अंदर सब कुछ डाल दिया इन्होंने. कोशिश करना इसको करने. ओके. राजवर्धन अब आप रुको. आई जस्ट वांट टू आस्क समबडी एल्स टू रीड. रवि आप पढ़ें. Yes, sir. या non-food crops. Non-food crops. Rubber. Rubber is mainly an equilateral crop. But under special conditions. इक्वेटोरियल ऐसी जगह पे पैदा होती है जहां पे इक्वेटर वाला वेदर होता है, जैसे वेरी हॉट एंड वेरी ह्यूमिड. ओके. Yes, sir. But under special conditions, it is also grown in tropical areas. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter and temperature above 25 degrees Celsius. It is an important industrial raw material that supports many industries. ये देख लिया आप, ये देख लिया सबने. वेदर कंडीशन Yes, देखी. sir. टेम्परेचर 25 के ऊपर होना चाहिए, यानी गर्म टेम्परेचर चाहिए इसको. और कितनी रेन है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए इसको. ऐसी जगह पे होगी तो बहुत ज्यादा रेन और बहुत ज्यादा हीट. ऐसा जो वेदर होता है उसको ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल वेदर कहते हैं. ओके. फाइबर क्रॉप वो है जिससे बैग बनते हैं आपके. Fiber crop. बोरिया Cotton, jute, hemp, and natural silk are the 4 major fiber crops grown in India. The first 3 are plant products, while silk is obtained from cocoons of silkworm fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworm from the production of silk fiber is known as sericulture. Cotton. India is believed to be the original home of cotton. So scroll down. Yeah, continue please. It is one of the major raw material for cotton textile industry. Cotton growth is good in drier parts of Deccan Plateau and has black soil.
तो ध्यान रखना कॉटन ठीक। होती है व्हाइट कलर की, लेकिन पैदा कैसे सॉइल में होती है, ब्लैक कलर की सॉइल, और Black वहां पे soil. बारिश नहीं होनी चाहिए ज्यादा। हाँ कंटिन्यू। It requires high temperature, light rainfall or irrigation, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It is a kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. Okay, so June. basically, actually, एक मिनट रुक जा रवि। So basically, guys, Maharashtra has a lot of dependency on cotton. महाराष्ट्र के अंदर कॉटन काफी होता है क्योंकि ब्लैक सॉइल है तो वहाँ की डेक्कन की, और दूसरा वहाँ पानी कम होता है बारिश से। तुम्हें पता है इतनी सुसाइड्स होती है वहाँ पे फार्मर्स की, बारिश बहुत कम होती है। लेकिन कॉटन एक ऐसी है जो कि ऐसी जगह उगाई जा सकती है। नॉर्मल सी बात है यार, बारिश होगी तो कॉटन का जो फ्लावर है जो कि इतना फूला वासा है, इतना इतना अच्छा लग रहा है, वो बारिश में तो मर जाएगा, बिल्कुल पिचक जाएगा, दब जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है। कॉटन की कंडीशंस आपको बहुत इजी याद करना है। ब्लैक होती है, व्हाइट कॉटन कहाँ से निकलती है, ब्लैक सॉइल से निकलती है, और ड्राई वेदर चाहिए उसको, मिनिमम 210 डेज ऐसे चाहिए, इसमें बारिश नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, आप वेट करें रवि आप होल्ड करें एक मिनट। It's jute. Jute. नहीं रवि आप होल्ड करें, मैं बाकी लोगों को मैसेज, अभी विराज बचे हुए हैं, सात्विक बचे हुए हैं। ओके सात्विक यू कंटिन्यू, विराज को मैं उसके बाद चांस देता हूँ। अंतरिक्ष आप भी बचे हुए अभी। हाँ Sir, jute. या जूट। Jute. It is known as the golden fiber. Jute grows well on the well-drained, fertile soil in the flood plains. It is because soils are renewed every year in these plains. It requires high temperature during the growing period. This fiber is very strong, and due to its roughness, it is used to make gunny bags, mats, yarns, carpets, and other artifacts. ओके, तो बेसिकली जूट के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है। दो चीजें हैं, एक तो वहां का रिन्यू चाहिए हर बार, सॉइल रिन्यू। तो कहाँ हो रहा है जूट आपका होता है, बंगाल में, बिहार में। जूट क्या होता है, जूट जब पका नहीं होता, कच्चा ही जूट होता है, तो उसके स्टेम को काट लेते हैं, और स्टेम काट में पानी में डाल देते हैं। आई थिंक वो पता नहीं काफी दिन तक पानी में पड़ा रहता है, 2-3 हफ्ते पानी पड़ा रहता है, फिर वो गल जाएगा, उसका जो स्टेम है ना वो गल जाएगा, तो उसका जो बाकी मटेरियल तो रह जाएगा, लेकिन वो जो फाइबर तक धागे जो होते हैं वो बच जाते हैं। उनको फिर निकाल के प्रोसेस किया जाता है, थोड़ा सा केमिकल प्रोसेस टाइप का होता है, और उसके बाद उसको ड्राई कर लेते हैं। नाउ इट बिकम्स ए रोप, या फिर फाइबर बन जाते हैं। उन फाइबर्स को आपस में वीव करके हम रोप बनाते हैं। जूट जनरली गनी बैग के लिए यूज होता है, पैकिंग मटेरियल वगैरह यूज होता है, लेकिन देयर इज स्पेशल टाइप ऑफ जूट व्हिच इज कॉल्ड डेलिकेट जूट, उसके कपड़े भी बनते हैं। ओके, आर्टिफैक्ट का मतलब होता है अलग, थोड़ा सा वो क्राफ्टमैनशिप टाइप का जो काम करवाना। एक मिनट साथ में पढ़ देना, काफी अच्छे पॉइंट दे रखे हैं इधर। Equatorial crops. Equatorial crop. The crops grown in the equatorial region which remains hot and humid throughout the year, such as rubber, tea, coffee, etc. White revolution, also called ओके, एक मिनट बता देता हूँ व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है। एक बंदा था, अभी उसकी डेथ एनिवर्सरी थी, 9th डेथ एनिवर्सरी, डॉक्टर कुरियन, वर्गीस कुरियन। किसी ने नाम सुना वर्गीस कुरियन का? अमूल के जो फाउंडर थे, वो अमूल के फाउंडर थे। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है। गुजरात में एक शहर है बहुत बड़ा, उसका नाम आनंद है। वहाँ के लोग बड़े परेशान रहते थे, व्यापारी उनसे दूध खरीदते थे, कभी नहीं खरीदते थे, परेशान करते थे। तो कुरियन ने उनकी कोऑपरेटिव बनवाई थी, उसका नाम था अमूल मिल्क प्रोड्यूसर जो लिमिटेड, कोऑपरेटिव लिमिटेड। और उससे धीरे धीरे वो बढ़ता गया। आज ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड है अमूल के, द एंटायर वर्ल्ड नोज इट। सो इससे क्या हुआ, ये तो शुरू हुआ, अमूल का प्रोडक्शन, दूध मिल्क का प्रोडक्शन धीरे धीरे कमर्शियलाइज हो गया और ज्यादा बढ़ने लगा। हमारे कंट्री में तो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इससे हमें खाना मिला खाने के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन है कि हमारे कंट्री के अंदर दूध की खपत, दूध की जो प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत मैनी फोल्ड इट हैज इंक्रीज्ड and it become a major product of people's diet now. Yeah, continue करें white revolution. Also called Operation Flood, this revolution aimed at increasing the production of milk by setting up milk processing centers, milk cooperatives, good transport system. India is the largest producer of the milk. Land reforms, also called agrarian reforms. These were initiated by the government of India for redistribution of agricultural land to improve the efficiency of agriculture and bring social justice to rural people. मैंने तुम बताया था 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, जिसके अंदर की एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, क्योंकि जमींदार लोग बोलते थे हमारा राइट है, तो हटा दिया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने उनसे जमीन ले ली और लोगों के अंदर बांटी। ये काम सबसे ज्यादा कौन से 2 स्टेट में हुआ? केरला और
बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा। कंटिन्यू प्लीज। Collectivization. This means small farms would be gathered together into one large farm so that the farmers can work collectively. It was first started in USSR and promoted in India during the period of Green Revolution. Okay. Next, minimum support price. Minimum support price at which government purchases crops from the farmers. ये सबको पता है, एमएसपी बोलते हैं इसको नॉर्मल शॉर्ट में। अभी जैसे गेहूं का 1800 रुपए है, अभी बढ़ा दिया, इलेक्शन आ रहा है, यूपी का इलेक्शन आ रहा है, थोड़े दिन पहले मोदी गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ा के डिक्लेयर किया है। Procurement price. It refers to the price at which government obtains agricultural produce from farmers to maintain the buffer stock. और ये बात ध्यान रखना, देयर आर टोटल 23 आइटम्स इन द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस की है, जिसके अंदर गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है, जिनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, गोभी का बता रही है और पपीते का बता रही है और आम का बता रही है, उनका नहीं बताती। सिर्फ 21 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, सारी पल्सेज है, एडिबल ऑयल वाले वो है, राइस है, व्हीट है, ये सब चीजें एंड शुगर केन। लेकिन दो एमएसपी का मतलब है आपको इतने प्राइस पे, आप इससे कम प्राइस पे नहीं खरीद सकते किसान से मंडी के अंदर, ठीक। तो तुम लोग बोलोगे कि सर इसका मतलब है कि अगर किसी ने नहीं खरीदा तो गवर्नमेंट खरीदेगी? नो, गवर्नमेंट विल गारंटीज बाइंग ओनली टू क्रॉप्स, दैट इज व्हीट एंड राइस। जैसे कि एमएसपी पे अगर कोई नहीं खरीद रहा आपसे, देन गवर्नमेंट विल बाई इट फ्रॉम यू। एफएसआई करके एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, बहुत करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे वो लोग खरीदते हैं इसका। साथ में कंटिन्यू करें आप। ये हम अभी बात कर रहे थे जूट की, या जूट वाला कंटिन्यू करें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, तो वो जो मतलब सब क्रॉप सेलर होते हैं, जो मतलब फूड सेलर होते हैं, वो उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बेच भी देते हैं सर उसी प्राइस में? कौन से अगेन? सर, जो आपने बताया कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत करप्ट है सर, वो वो क्या करते हैं ना, वो क्या होता है, तो वो कैसे करप्ट है, वो खरीदते नहीं, वो तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है ना, गवर्नमेंट से जॉब है उनका, गवर्नमेंट में नौकरी करते हो गवर्नमेंट की। तो वो क्या करते हैं, वो ले लेंगे किसान से, ठीक है, दिखाएंगे, बोले भाई 100 टन इस बंदे से हमने 100 केजी ले लिया, और उसको पेमेंट भी दिलवा देंगे बैंक से या जहां से दिलवाना है, लेकिन लेंगे 50 केजी, गोदाम में 50 केजी रखा होगा है, और बाद में बोलेंगे सड़ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं फरीदकोट में मेरी पहली पोस्टिंग थी एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट, वहां बड़ा एफएसआई का बहुत बड़ा स्टॉक था, वो सारा खुले में पड़ा रहता था, वीट सड़ता रहता था, काला हो गया वीट, बोरियां की बोरियां सड़ रही है, कोई केयर करने वाला नहीं। तो वो क्या करेंगे, किसान से लेंगे 100 केजी, लिखाएंगे, पेमेंट देंगे उसको 100 केजी, लेंगे 50 केजी, और बाद में उसको बोलेंगे 25 केजी का पैसा मुझे वापस देवे, रिश्वत। किसान भी खुश, तो भाई मेरे को तो 75 केजी के बदले 100 केजी का मिल गया, और ये बंदा नुकसान, देश का नुकसान हो गया, देश को मिलना चाहिए था 100 केजी, मिला 50 केजी, बाद में बोला क्या हुआ, बोला चूहे खा गए या फिर खराब हो गया। ये सब कहानी चलती है, काफी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है एफएसआई, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ओके राइट, दोबारा शेयर कर रहा हूँ मैं, या शेयर, ओके। ड्यू टू हाई, ये अच्छा दूसरा भी क्या, जूट, अब जूट की कीमत कम हो गई, अब जूट को पैसा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लोग नायलॉन वायलॉन की रस्सियां बना रहे हैं, वो बहुत सस्ती पड़ रही है यार, इसको कहाँ 6 महीने तक उसकी सफाई करो, बनाओ उसको, फैक्ट्री में फटाफट से वो नायलॉन की बनती है रस्सियां, तो अब इसको थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया इसके लिए। क्या कंटिन्यू करें सात्विक ये वाला? Due to its high cost, it is now losing the market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon. तो पॉलीथीन बन रही है, पॉलीथीन के बैग बन रहे हैं, और ये नायलॉन बन रही है। अभी जूट का तो डिमांड कम हो गया, तो उन किसानों के लिए दिक्कत हो रही जो जूट पैदा करते थे। ओके विराज, गो अहेड फ्रॉम हियर प्लीज। 42 टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। क्या रिफॉर्म समझना क्या होता है? रिफॉर्म होता है बदलाव अच्छाई के लिए, स्टेप्स व्हिच आर टेकन फॉर इंप्रूवमेंट, दोस आर कॉल्ड रिफॉर्म्स। Yes, sir. Shall I? Yeah, Viraj, please go ahead. Yes, sir. Technological and institutional reforms. Technological reforms. The government of India in 1960s to 70s introduced agricultural reforms to improve Indian agriculture, like Green Revolution and White Revolution. White Revolution. तो मैं बता दूं, स्वामीनाथन कमेटी बनी थी। स्वामीनाथन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, अभी नाउ अराउंड 80 और समथिंग।
3 साइंटिस्ट को बना के एक कमेटी बनाई गई थी। दे स्टडीड इन डिटेल कि क्या प्रॉब्लम है। तो पहली बात उन्होंने बोला कि इंडिया के फार्मर को ये नहीं पता कि सॉइल में कौन सी सॉइल उसको उगानी चाहिए। तो सेंटर बनाए गए जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग होती है, भाई आपकी सॉइल इसके काम के लिए अच्छी है। दूसरा, आपकी सॉइल के अंदर ये वाला फर्टिलाइजर डालो, ये कम है आपके में। जनरली फर्टिलाइजर में 3 चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और एक और चीज होती है नाइट्रोजन में से कुछ है। यूरिया, बेसिकली यूरिया के अंदर तो नाइट्रोजन पूरी, और दूसरे होते हैं पोटेशियम, सोडियम, और एक और मेरे को वर्ड नहीं आता, 3 वर्ड इसका बनता है। तो उनको बताया जाता है भाई तुम्हारी खेती में ये कम है, ये वाला डालो आप। फिर स्टडी किया कौन कौन से इंसेक्ट है जो खराब कर रहे हैं क्रॉप को, उसके लिए पेस्टिसाइड्स रिकमेंड किए गए, इंसेक्टिसाइड रिकमेंड किए गए। गवर्नमेंट को बताया गया कि जो आप फर्टिलाइजर में थोड़ा सा सब्सिडी दो, क्योंकि लोग फार्मर तो नहीं खरीद सकते। तो हमारा कंट्री बहुत सारा फर्टिलाइजर इनफैक्ट इंपोर्ट करता है बाहर के कंट्री से, यूरिया खासकर। इनफैक्ट एक बार ये एक हमारी गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर हैं, गडकरी जी, नितिन गडकरी, बहुत अच्छा मिनिस्टर माना जाता है, उनको बहुत रेस्पेक्टेड है वो। अभी तो वो नहाई के वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है अभी। लेकिन उन्होंने एक आइडिया दिया था कि हमारे देश के लोग जितना ये यूरिन है, अगर इसको ठीक तरह से चैनलाइज करके इसको कमर्शलाइज किया जाए तो हमारे कंट्री के अंदर इतनी यूरिया पैदा हो जाएगी कि हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज यूरिन जो है उसके अंदर यूरिया ही होता है, हमारी बॉडी से यूरिया निकलता है। तो हमारा कंट्री बहुत इंपोर्ट करता है और उसके लिए गवर्नमेंट पेमेंट करती है और किसानों को सस्ते दामों पे वो फर्टिलाइजर बेचा जाता है, दिस कॉल्ड सब्सिडी। ठीक है, ये कब बोला। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कही कि हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स आप डेवलप करो। धीरे धीरे उनको एक्सपेरिमेंट हुआ, उनको साइंटिस्ट डॉक्टर्स लगे। अब जो नहीं तो पहले क्या होता था, एक किसान का गेहूं की खेती हुई, उसी में से एक बोरी रख लिया, अगले साल इसी को बोना है। उन्होंने कहा ये मत करो, आप हाई यील्ड वैरायटी की खरीदो, उसमें थोड़ा पानी ज्यादा लगेगा, फर्टिलाइजर ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको प्रोड्यूस बहुत मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट मेजरली किए गए थे हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी में। तो यही है, यहाँ के तीनों के प्रदेशों के किसान, स्टेट के किसान काफी रिच हैं और अच्छा पैसा बनाते हैं। तो दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ लेट अस सी इंस्टीट्यूशन रेवोल्यूशन। क्या हुआ था इंस्टीट्यूशन रेवोल्यूशन में? होता तो क्या होता कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक वर्ड आएगा इसमें, चकबंदी। चकबंदी, चक बोलते हैं पीस ऑफ लैंड, यानी कि फार्म, आपका छोटा सा फार्म है, एंड इसको बोल सकते हैं कंसोलिडेट। तो हुआ क्या था दोस्तों चकबंदी में कि मैं किसान हूं, मेरा एक खेत एक यहाँ पे है, एक मेरा प्लॉट यहाँ पे है, एक नदी के पार उधर है, ऐसे में अब मैं आधे टाइम यहाँ रहता हूँ, कभी यहाँ पानी देने जा रहा हूँ, कभी अपने बैल को लेके यहाँ जा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान किया था कि आपके जहां जहां जमीन है आपको इकट्ठा करके मिल जाएगी, यहाँ पे किसी और दूसरे बंदे को मिल जाएगी, यहाँ किसी दूसरे बंदे को मिल जाएगी। दिस इज नोन एज चकबंदी। ओके विराट, कंटिन्यू प्लीज। Yes, sir. Institutional reforms. Major institutional reforms were introduced in India from the first 5-year plan. Their focus was land reforms that include collectivizations, consolidation of land holding, chakbandi, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, cooperative, yes sir, development of cooperative societies, abolition of zamindari, etc. As right of inheritance, divide the land holdings to very small units that reduce productivity. So land reforms was the main focus in the institutional reforms. Yes, land development programs. A comprehensive land development program, LDP, was introduced during 1980s and 1990s. This program included both institutional and technical reforms. तो वही आगे चकबंदी वगैरह करी गई, साथ में टेक्निकल रिफॉर्म किए गए, जैसे सेटिंग अप ऑफ लैब्स एंड ऑल टू चेक द सॉइल क्वालिटी एंड हेल्प द। उसके अंदर और भी चीजें थी, जैसे एक दूरदर्शन के ऊपर, टीवी के ऊपर फार्मर्स के प्रोग्राम आते थे, रेडियो पे प्रोग्राम्स आते थे उनको एजुकेट करने के लिए। ओके, अंतरिक्ष, अदर रिफॉर्म्स पढ़े आप? यस सर। अदर बेनिफिट स्कीम्स फॉर फार्मर्स आर the Kisan Credit Card (KCC) scheme for giving easy and cheap loans to small farmers. Personal accident insurance scheme best for Kisan Credit Card holders. Special weather bulletins and agriculture program for farmers were introduced to radio and television channels. मैं बताता हूँ, हमने टाइम देखा है, एक मिनट बताओ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ।
एक टाइम ऐसा था हम पिक्चर देखने जाते थे, मूवी देखने जाते थे, तो मूवी से पहले 10 मिनट का किसानों का प्रोग्राम होता, तो सारी दुनिया बैठ के देखती, वो मतलब एक तरह से मजबूरी था। इट वाज यू नेवर न्यू कि कौन सी पिक्चर से पहले दिखाएंगे कौन सी पहले नहीं दिखाएंगे, तो ये नहीं कह सकते कि सर 10 मिनट लेट चले जाते आपको अगर नहीं देखना था तो पता ही नहीं चलता था। तो पिक्चर चल रही है, उस पिक्चर से पहले, मूवी से पहले 10 मिनट का प्रोग्राम आएगा किसान भाइयों के लिए, वो सब देखते थे बैठ के। तो इस तरह की भी चीजें गवर्नमेंट ने की है। या कंटिन्यू प्लीज। Yes, sir. Special weather Government also. bulletins and agriculture. Government also announced minimum support price (MSP), Remunerative and procurement prices for various agricultural products like cereals, pulses, and others to check the exploitation of farmers by the middlemen. बाय मिडिल में होता क्या है कि जो गरीब किसान होता है दोस्तों, गरीब किसान को प्रॉब्लम ये है कि उस बड़ी मुश्किल से तो उसने खेती करी अपनी, अब वो कहाँ से एक ट्रक लेके आए, ट्रैक्टर उसके पास खुद का है नहीं, किसी से पैसे लेके उसको लेके जाए, ट्रांसपोर्ट करके मंडी तक लेके जाए। मंडी में मैंने तुम्हें उस दिन कहानी बताई हुई थी, मंडी के अंदर सारे सारे पॉलिटिशियन है, इनके भाई भतीजे बैठे रहते हैं, 5% उसको देना पड़ता है। तो किसान क्या करते थे, फिर बीच में एक बंदा बीच में आ जाएगा, बोलेगा कि यार जब एमएसपी नहीं था, अरे इतने में दे दे, चल पैसे ले ले फटाफट। तो वो क्या करता, दो चार छोटे छोटे किसानों लेके फिर लेके मंडी में बेचने जाता। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं एमएसपी बिकेगा, तो एमएसपी से अभी भी एमएसपी से कम बिकता है। जैसे 1800 समथिंग 40 रुपीज है वीट का, तो छोटा किसान का, कोई पड़ोस का किसान या बड़ा किसान बोलेगा सुन दे रहा है 1500 में दे दे, चल वो 1500 में देता है। हाँ वो बात अलग है कि किसान उसमें थोड़ी सी बहुत थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट प्राइस मिलने से उसको एक एंकर मिल जाता है कि इतना इतना कम नहीं दे सकता मैं भी, 1000 रुपीज नहीं दूंगा, 800 नहीं दूंगा, 15 में ले ले, ऐसी करके बात होती है। ये मैं किसी दिन तुमसे बात करूंगा इस बारे में ना, किसान किसान कानून का बहुत मुद्दा चल रहा है। वन डे आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू द एंटायर स्टोरी। ओके अंतरिक्ष, जल्दी कंटिन्यू करें प्लीज। पॉइंट नंबर 47। Yes. Provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire, and disease. Establishment of Grameen banks, cooperative societies, and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest for some other important reforms. ये लेकिन हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिस में अभी बहुत कम है। ये बेसिकली गवर्नमेंट की किताबों में ज्यादा है, प्रैक्टिस में बहुत कम है। मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कहते हैं कि काफी बैंकों को डंडा लगाया है कि तू लोन दो लोन दो लोन दो। तो अभी क्या ऐसा भी हुआ बीच में कि बैंक के अधिकारी किसानों को पकड़ रहे हैं, वो लोन लो, तुम हमें लोन का दिखाना है, इतने लोन हमें दे दिए। ओके ये भूदान ग्रामदान। भूदान एक विनोबा भावे थे, गांधी जी के साथ काम किया था उन्होंने, और उन्होंने क्या किया था, वो ही स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। ही वेंट टू ऑल द लैंडलॉर्ड्स एंड स्टार्ट सेइंग कि अपनी जमीन को दान करो गरीब लोगों को, गरीब किसानों को। तो उसको भूदान, भू मतलब लैंड, दान मतलब दे दो। हाँ जी कंटिन्यू करें। विनोबा भावे। Bhudan Gramdan. Vinoba Bhave, who followed the ideals of Mahatma Gandhi, undertook a Padyatra journey on foot to spread Gandhiji's message over the whole of India. Bhave planned to solve the problem of poor landless villages through cooperative farm. Bhave. Through cooperative farm with government assistance. Sri Ram Chandra Reddy was first to offer 80-acre land which was to be distributed among 80 landless villagers, and then this mission was known as the Bhudan, donation of land. Later, Bhavya traveled and introduced his ideas widely all over India. Some zamindars offered to distribute some villages among landless. This was known as the Gramdan, donation of villages. Some landowners chose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of the Land Ceiling Act. The Bhudan Gramdan movement, initiated by Vinoba Bhave, is also known as the Bloodless Revolution. Okay. So, what is Land Ceiling Act? तुम बोलोगे Land Ceiling Act गवर्नमेंट ने बोला कोई भी बंदे के पास 12 एकड़ से जमीन नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं होगी, किसी के पास ज्यादा होगी तो हम ले लेंगे उससे। तो लोगों ने फिर क्या किया, अपने भाई के नाम, भतीजे के नाम, उस चाचा के नाम, ताऊ के नाम, दुनिया भर के लोगों को देनी शुरू कर दी, अपने घर के वर्कर के नाम कर दी। पेपर अपने पास रखते थे पर नाम उसका डाल देते। ओके अंतरिक्ष यार जल्दी करना, मुझे खत्म करना चैप्टर, बस थोड़ा फास्ट रीडिंग करना भी। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। Yes, sir. Impact of globalization on agriculture. Globalization is existing from the time of colonization. During the 19th century, spices were exported to Europe. Especially farmers of South India were encouraged to grow spices which were exported to many countries. Even today, spices are one of the most important items of export from India.
During colonial period, cotton was exported to mills in Manchester and Liverpool for textile industry. Indian farmers were also forced to grow indigo on their land. It was done because indigo was a necessary item for the textile industries, which were located in Britain. These farmers were also able to grow food grains to sustain their families. As a result, Champaran movement started in 1917 due to the forced indigo production. गांधी जी Agriculture has सबसे assumed पहला मूवमेंट था ये. हाँ, next. Agriculture has assumed a different dimension now. Farmers in Europe and America are highly subsidized by their governments to which their products are cheaper. Our farmers are not able to compete with them on price of major commodities like rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices. Okay, continue करें, खत्म करना है इसको भी. हाँ. Yes, sir. Continue. ऊपर scroll कर दीजिए. कर दिया. The Green Revolution has resulted in land degradation due to overuse of chemicals and drying up of aquifers, groundwater resources, and loss of biodiversity due to cutting of forest areas. Gene Revolution. In today's world, gene revolution is the key word for the revolution in agriculture production. It is based on genetic engineering. Genetic engineering is recognized as a powerful supplement in inventing new hybrid variety of seeds. Organic farming is also popular because it is practiced without factory made fertilizers and pesticides. According to a few economists, Indian farmers are affected in future if they continue growing food grains on holdings of lower productivity as the population rises. Due to growing population of India, farm sizes are getting smaller. The government must pursue a policy to make Indian farmers shift their cropping pattern from cereals to high value crops. This will make them better off as well as reduce environmental degradation. Continue. सर स्क्रीन ब्लैक हो गई मेरी तो. चलो. Yes, ओके, sir, लास्ट. या कंटिन्यू करें. तो ये fruits, medicinal herbs. just this. Yes, sir. Fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops which are converted into fuel like jatropha and jojoba are high-value crops that need much less irrigation than rice or sugarcane. India's varied climate and geography can be used to grow a wide range of high-value crops. Benefits of changing the cropping pattern in India. If India changes its cropping pattern, that is from cereals to high-value crops, then it has to import food crops. During 1960, it was seen as a disaster. On the other hand, if India imports cereals while exporting high value commodities, it will be following successful economies like Italy, Israel, and China. These countries export farm products, examples fruits, olives, especially seeds and wine, and import cereals. Okay. Right, guys, with this we come to the end of this chapter. I was thinking that we can start the water chapter today, but it was not to be. Okay, tell me, tomorrow should we start water chapter, or you guys want to start with the triangles? सर ट्रायंगल सर 17th को पेपर है. ओके, ट्रायंगल्स पहले कर लेते हैं. ठीक है, वाटर बाद में करें. गाइस, तो ट्रायंगल मैंने कराया है. कल मैं दोबारा इसको रीस्टार्ट करने वाला हूं. एंड वी विल फिनिश दिस बिफोर 17. ओके, चलो ठीक है गाइस. ओके, बाय बाय. आई हैव ट्राइड दिस. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. अदरवाइज विल गो बैक टू मीट. राइट. बाय बाय गाइस. Bye bye everyone. I'm ending the meeting now. Thank you, sir. Thank you.